السلام علیکم دوستوں، ہم نے ورلڈ وار 1 کے پارٹ 1 میں ذکر کیا تھا کہ کس طرح گریویلو پرنسپ کی فائرنگ سے پرنس فرانز فرڈینینڈ اور ان کی وائف کا قتل کیا، جس کے بعد آسٹرو ہنگیرین امپائرز نے سربیا پر حملہ کیا اور ایک خون ریز جنگ کے بعد کس طرح سینٹرل پاورز نے مل کر اس پر قبضہ کیا۔ اب ہم جانیں گے کہ جرمنی کا مشہور شلیفن پلان کیا تھا۔ کیا جرمنی اس پلان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہوا؟ شلیفن پلان میں برطانیہ اور بیلجیم کا کیا کردار تھا اور کیسے جرمنی نے مختلف محاذ پر لڑائی لڑی اور اس جنگ میں فرانس اور رشیا کا کیا کردار تھا؟ جی ہاں دوستو، میرا نام ہے قاسم سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری دیٹ چینج دی ورلڈ کا 8th ایپیسوڈ۔ دوستو، سینٹرل پاورز کی سربیا پر کامیابی کے بعد جرمنی جو اپنے شلیفن پلان کو بہت وقت سے عملی جامہ پہنانا چاہتا تھا، اس کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ مگر یہاں پہلے شلیفن پلان کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ پلان جرمن فیلڈ مارشل الفریڈ وان شلیفن نے تیار کیا تھا، جس کے تحت جرمنی فرانس پر بیلجیم کے راستے حملہ کر کے 40 دن کے اندر پیرس پر اور اس کے قریبی سرحدی علاقوں پر قبضہ کر سکتا تھا۔ مگر دوستو، جنرل شلیفن کا انتقال 1914 میں ہو چکا تھا۔ اب جنرل شلیفن تو نہیں تھے، مگر ان کا پلان ابھی بھی موجود تھا۔ شروعات میں تو اس پلان میں نیدرلینڈ کی سرزمین بھی استعمال ہونی تھی، مگر اب پلان میں تھوڑی تبدیلی کر دی گئی، یعنی نیدرلینڈ کو راستے سے ہٹا کر صرف بیلجیم اور لگزمبرگ کی زمین استعمال ہونی تھی، جس کو کامیاب کرنے کے لیے 2 اگست کو جرمنی نے لگزمبرگ پر قبضہ کر لیا اور ساتھ ہی بیلجیم کو الٹیمیٹم بھیج دیا کہ فرانس پر حملہ کرنے کے لیے جرمنی کو راستہ فراہم کرے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ بیلجیم کا بادشاہ کنگ ایلبرٹ I برطانیہ کا اتحادی تھا اور اس کو برطانیہ کی طرف سے مدد کا پورا یقین تھا، جس کی وجہ سے اس نے جرمنی کا الٹیمیٹم ریجیکٹ کر دیا۔ جی ہاں دوستوں، اس کے بعد وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا، یعنی اس کے فوراً بعد جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کر دیا۔ اب ان سب کے بعد برطانیہ کیسے خاموش بیٹھ سکتا تھا؟ آخرکار اس کے جواب میں برطانیہ نے جرمنی کے خلاف وار ڈکلیئر کر دی، یعنی اب دونوں بڑی طاقتیں آمنے سامنے تھیں۔ دوستوں، جرمنی اس زمانے کی سلو ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے اپنے پلان کے مطابق نہیں چل پا رہا تھا۔ اس وقت ٹرانسپورٹیشن اتنی جدید نہیں تھی، یعنی روڈ اور گاڑیاں اتنی تیز نہیں تھیں جتنی آج کل ہیں۔ اب بھی ٹرانسپورٹیشن کے لیے گھوڑا گاڑی کا استعمال ہوتا تھا، مگر پھر بھی 11 دن کی خون ریز جھڑپ کے بعد جرمنی بیلجیم کے سرحدی شہر لیک پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو، جہاں جرمنی بیلجیم پر قبضہ کرنے میں مصروف تھا، وہیں دوسری طرف جرمنی کے خلاف برطانیہ بھی فرانس کے راستے بیلجیم میں گھس گیا تھا اور یہاں سے بیٹل آف فرنٹیئرز شروع ہو جاتی ہے، یعنی فرانس، برطانیہ اور بیلجیم جرمن فوجیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ مگر ان سب کوششوں کے باوجود برطانیہ اور فرانس کو دی گریٹ ریٹریٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی جرمن فوجی فرانس میں گھس جاتے ہیں اور صورتحال کچھ یوں تھی کہ جرمن فوج پیرس سے صرف 40 کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ چکی تھی۔ دوستوں، یہ صورتحال فرانس کے لیے اس حد تک بدتر ہو چکی تھی کہ فرانس نے 2 ستمبر کو اپنی سارے آفیشل سٹاف کو پیرس سے دور مقام پر شفٹ کر دیا تھا، یعنی پیرس میں اب صرف فوج موجود تھی۔ دوستوں، جرمنی اپنے شلیفن پلان مکمل کرنے کے قریب ہی تھا، مگر اس دوران جرمنی ایک ایسی غلطی کر دیتا ہے جس سے اس کے اب سارا پلان رک کر واپس پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جرمنی اپنی فوجیوں کی پوزیشن میں کچھ ایسا چینج لاتا ہے کہ جس میں فوجیوں کی پوزیشن میں گیپ آ جاتا ہے، جس کو مخالف فوجی بھانپ لیتے ہیں اور برطانوی فوجی ٹائم ضائع کیے بغیر اس گیپ پر اٹیک کر دیتے ہیں، جس سے جرمنی فوجیوں کو سامان کی ترسیل رک جاتی ہے۔ دوسری طرف فرانس مزید فوجیوں کی درخواست کرتا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے ایک انوکھا قدم اٹھایا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، جلد سے جلد مزید مدد پہنچانے کے لیے شہر کی ٹیکسی اور ٹرک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح فوجیوں کی مزید کمک بارڈر پر پہنچ جاتی ہے۔ اس 2 طرفہ حملے کی وجہ سے جرمنی کا شلیفن پلان ناکام ہو جاتا ہے اور 45 ڈیز کی خون ریز لڑائی کے بعد جرمن فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ دوستوں، اب صورتحال کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ دونوں فورسز کے بیچ ویسٹرن فرنٹ پر ٹرینچ وارفیئر سٹارٹ ہو جاتی ہے۔
दोस्तों ये खंदकों से लड़ी जाने वाली जंग 4 साल तक जारी रहती है और जिसकी वजह से लाखों की तादाद में फ़ौजी मारे जाते हैं। दोस्तों आप यकीनन सोच रहे होंगे कि हम इस वक्त वेस्टर्न बॉर्डर की बात तो कर रहे हैं, मगर इस दौरान ईस्टर्न बॉर्डर कैसे महफूज था, क्योंकि वहाँ अलाइड फोर्सेस की एक ताकतवर इत्तेहादी रशिया मौजूद था। यहाँ ये कहना गलत होगा कि जर्मनी ने श्लैफन प्लान में रशिया यानी अपने ईस्टर्न बॉर्डर को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि जर्मन्स के श्लैफन प्लान के मुताबिक उन्होंने 40 दिन के अंदर पेरिस पर कब्जा करना था और उनके ख्याल था कि रशियंस को पेशकदमी में 6 हफ्ते लगेंगे और जर्मन फोर्सेस 40 दिन में पेरिस पर कब्जा करके रशियन फोर्सेस के पहुंचने से पहले अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर वापस आ जाएंगी। मगर यहाँ इनकी कैलकुलेशन सही नहीं थी, क्योंकि जब जर्मन अपनी पूरी ताकत से वेस्टर्न बॉर्डर पर लड़ रहे थे, रशियन फोर्सेस सिर्फ 2 हफ्तों में ईस्टर्न बॉर्डर यानी ईस्ट प्रोशिया के बॉर्डर तक पहुंच चुकी थी। अब पोजीशन कुछ इस तरह थी कि जर्मन्स की 1,66,000 फौजियों के मुकाबले रशियंस के 4,60,000 फौजी इनके सामने खड़े थे। और फिर दोस्तों 15 अगस्त को रशियन आर्मी ईस्ट प्रोशिया में घुस जाती है। यहाँ रशियन फोर्सेस 2 दफ़ा यानी 17 अगस्त और 20 अगस्त को जर्मन फौजियों को शिकस्त दे चुकी होती है। 200 रशियन फोर्सेस की तेज़ पेशकदमी और कम जर्मन फौजियों की मौजूदगी की वजह से जर्मन कमांडर ब्रेटवेट्स को अंदाज़ा हो जाता है कि इस फ्रंट पर जीतना मुश्किल है और नुकसान को कम से कम करने के लिए वो ईस्ट प्रोशिया खाली करने की दरख्वास्त जर्मन हाई कमांड से करते हैं। दोस्तों जर्मन हाई कमीशन जवाब में ब्रेटवेट्स और वॉल्टर जी को बरतरफ करके 24 अगस्त 1914 को उनकी जगह फील्ड मार्शल वॉन हिंडनबर्ग और मेजर जनरल एरिच लिंडरॉफ को तैनात कर देते हैं। दोस्तों हिंडनबर्ग जो 67 साल के थे, इनका शुमार एक तजुर्बेकार हीरो में होता था और ये आर्मी आइकन समझे जाते थे। दोस्तों अब यहाँ लिंडरॉफ की मुलाकात एक ऐसे ज़हीन शख्स से होती है। ये शख्स थे कलोनल मैक्स हॉफमैन, जिनके मुताबिक रशिया की सप्लाई लाइन काटने का एक बेहतरीन प्लान होता है और लिंडरॉफ भी इनके इस प्लान से मुत्तफिक होते हैं और उस प्लान को फ़ौरन अमल में लाया जाता है और सबसे पहले रशिया की सप्लाई लाइन काट दी जाती है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि जर्मन जो इस इलाके के जंगल और झीलों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे, बहुत आसानी से रशियंस को अपना हदफ बना लेते हैं, क्योंकि रशियंस इन जंगलात से नावाकिफ़ होते हैं और यही वजह होती है कि जर्मन फौजी रशियंस को हर तरफ से घेर लेते हैं और फिर आखिरकार 31 अगस्त को रशियन फौजी हथियार डाल देते हैं और इस जंग में 50,000 के करीब फौजी मारे जाते हैं, जबकि 92,000 के करीब गिरफ्तार होते हैं। अब जर्मन फोर्सेस का पूरा फोकस रशियन फोर्सेस के खिलाफ दूसरे महाज पर हो गया था और फिर एक तवील खूनरेज़ झड़प के बाद फरवरी 1915 में रशियन ट्रूप्स को ईस्ट प्रोशिया से भागने पर मजबूर होना पड़ता है और इस तरह आखिरकार जर्मन बैटल ऑफ टैननबर्ग जीत जाते हैं। दूसरी तरफ रशियन फोर्सेस ने अपनी हार का बदला जर्मन से इस तरह लिया कि इनके इत्तेहादी यानी सेंट्रल पावर से लेम्बर्ग शहर, जो पहले ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर का पार्ट था और मौजूदा दौर में यूक्रेन का शहर है और अब लोग इसे लवीव के नाम से जानते हैं, वो उनसे छीन लिया था। असल में हुआ कुछ यूँ था कि 23 अगस्त से सितंबर 1914 के दरमियान ग्लेशियन फ्रंट लड़ी गई, जो लेम्बर्ग शहर का सूबा था। दोस्तों इस लड़ाई में जदीद हथियार के साथ साथ तलवारों का भी इस्तेमाल हुआ और एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा ऑस्ट्रिया हंगेरियन मारे गए और 2 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, जबकि रशियंस के टोटल 1,50,000 फौजी हलाक और ज़ख्मी हुए और नतीजे में ऑस्ट्रिया को लेम्बर्ग से हाथ धोना पड़ा और रशिया का इस शहर पर कब्ज़ा हो गया। मगर यहाँ ये जीत रशियंस का ज़ख्म भरने के लिए काफ़ी नहीं थी। रशियन अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए एक और शहर का रुख करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब रशियन की नज़र शेमिशल पर मरकूज़ हो जाती है और फिर आखिरकार वो इस शहर पर कब्ज़ा कर लेते हैं। ये मुहासरा 16 सितंबर 1914 से लेकर 22 मार्च 1915 तक जारी रहता है और कई रोज़ की खूनरेज़ बमबारी के बाद ऑस्ट्रिया हंगेरियन सरेंडर कर देते हैं। ये दूसरी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त ऑस्ट्रियंस के लिए मज़ीद शर्मिंदगी का बायस होती है। मगर ऑस्ट्रियंस के सबसे बड़े इत्तेहादी
जर्मन्स उनको अकेला नहीं छोड़ते। जैसे ही जर्मन मैदान में उतरते हैं, रशियन वापस चले जाते हैं। दोस्तों, ये महाज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में चल रहा था और चूँकि बरतानिया भी इसका हिस्सा बन चुका था, इसलिए बरतानी नेवी के वज़ीर विंस्टन चर्चिल ने धोखेबाजी के साथ एक ऐसा नया महाज खोल दिया जिससे सेंट्रल पावर्स का एक अहम इत्तेहादी ऑटोमन एम्पायर्स को भी वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल होना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि ऑटोमन एम्पायर जो मौजूदा दौर का तुर्किया है, उन्होंने बरतानिया से 2 पानी के जंगी जहाज़ खरीदने का मुआहदा किया था, जिसकी अदायगी भी कर दी गई थी। मगर दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होते ही विंस्टन चर्चिल ने अपना ये पानी के जहाज़ ना सिर्फ ऑटोमन एम्पायर्स को देने से इनकार कर दिया था, बल्कि उन पर कब्जा करके उनको बरतानवी नेवी के हवाले कर दिया था। दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर्स यानी तुर्किया इस गैर कानूनी और गैर इखलाकी हरकत की तवक्का नहीं कर रहा था, मगर ऐसे मौके पर उनके इत्तेहादी जर्मन्स तुर्की की मदद के लिए आगे आते हैं और उस खिला को पुर करने के लिए तुर्की को 2 पानी के जहाज़ तोहफे में देते हैं। और इस तरह 11 नवंबर 1914 में सुल्तान महमद V अलाइड पावर्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। दोस्तों, इसी दौरान ऑटोमन एम्पायर्स को सबक सिखाने के लिए अलाइड पावर्स ने अपनी नज़रें गैलीपोली पर मरकूज कर दी, क्योंकि गैलीपोली पर कब्जे की सूरत में न सिर्फ यूरोप को अपने पुराने ख्वाब कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल पर कब्जे करने का रास्ता मिल जाता है, बल्कि इसके साथ साथ बल्कान की साबका रियासतों पर भी इनकी रसाई आसान हो जाती है। मगर यहाँ ये भी याद रहे कि ऑटोमन एम्पायर्स आंखें बंद करके नहीं बैठे थे, वो इस खतरे को भांप लेते हैं और ऑटोमन्स ने अपनी फ़ौज का एक हिस्सा गैलीपोली भेज दिया, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मुस्तफ़ा कमाल पाशा कर रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो गैलीपोली के महाज पर पहले ही बल्कान जंग लड़ चुके थे, इन इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। और फिर आखिरकार दोस्तों 18 मार्च 1915 को बरतानवी और फ्रेंच शिप्स डार्डेनल्स में दाखिल हो जाती हैं, मगर दूसरी तरफ ऑटोमन नेवी के ताबड़तोड़ हमले उनको घुसने मुश्किल बना देते हैं और इनको पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, इस लड़ाई के नतीजे में अलाइड फोर्सेस की कैलकुलेशन के बरखिलाफ बरतानवी और फ्रेंच जहाज़ डूब जाते हैं और जो बचते हैं वो बुरी तरह मुतासिर होते हैं। अब दोस्तों, इस समुद्री जंग की हार के बाद अलाइड फोर्सेस ने 25 अप्रैल को ज़मीनी लड़ाई शुरू कर दी और अलाइड फोर्सेस कैप हेल्स के मुकाम पर उतर जाते हैं। यहाँ ये भी कहा जाता है कि ऑटोमन कमांडर मुस्तफ़ा कमाल ने अपने जर्मन इत्तेहादियों की तरफ से भेजे गए कमांडर ऑटो लाइमन को इस जगह की निशानदेही पहले ही करा दी थी, जिसकी वजह से टर्क फोर्सेस को पहले ही वहाँ भेज दिया गया था। दोस्तों, यहाँ एनजेक फोर्सेस जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की फोर्सेस पर मुश्तमिल थीं, वो जैसे ही इन इलाकों में दाखिल होती हैं, वहाँ पर मौजूद टर्क फौजियों ने उनका मुकाबला किया, जिसके बाद एक खूनखार लड़ाई का आगाज़ हो गया। दोस्तों, कई महीनों की लड़ाई के बाद जब अलाइड फोर्सेस को अंदाज़ा हो गया कि ये लड़ाई उनके लिए मुश्किल होती जा रही है, तो उन्होंने खंदकें खोद कर वहाँ से लड़ना शुरू कर दिया। यानी अब यहाँ भी जर्मन और रशियंस की तरह ट्रेंच वॉर शुरू हो गई थी। मगर मुसलसल नाकामी के बाद अलाइड फोर्सेस जनवरी 1916 को वहाँ से भाग खड़े होते हैं और आखिरकार जीत का सहरा ऑटोमन एम्पायर यानी तुर्किया के हिस्से में आता है। दोस्तों, अब हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि जर्मन्स का अगला प्लान क्या था। वर्ल्ड वॉर 1 में ऐसा कौन सा ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल हुआ जो उस वक्त से पहले कभी किसी जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ था। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 की जीत का सहरा किसके सर गया और ख़तरनाक आलमी तंजीमों का उसमें क्या किरदार था, ये सब जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड वर्ल्ड वॉर 1 विक्ट्री और डिज़ास्टर।